Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well, staying safe and healthy. Talking about today's video, it is all about Google Form. हम Google Form की हेल्प से क्विज कैसे बना सकते हैं या अपना असेसमेंट पेपर हो या क्लास टेस्ट हो वो कैसे बना सकते हैं. That I'm going to cover step by step in my today's video. And before starting, I just want to tell you that it is going to be very useful for the teachers as well as for the tutors and students. So the best part about Google Form is that you get your report instant. आपका result on the spot ready हो जाता है. So this is the best part about it. And now without wasting your time, I'll start with my video. Step 1. For the first step, you'll have to open your Google Chrome. Once your Google Chrome is open, you can write your Google Forms. Then you'll see the first link, Google Forms free online surveys for personal use. Click on this link. तो आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, पर्सनल एंड बिजनेस. सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन पर्सनल बिकॉज हम पर्सनल बना रहे हैं. एग्जाम पेपर इज पर्सनल. एंड आगे देखिए तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, RSVP, these all are my previous Google Forms. Now I'm going to create the new one, so blank. I'll click on blank. नया बना रहे हैं. Now you can see this format here. अब क्या करेंगे, untitled form. So I'm going to give name to it. For example, I'm making for mathematics, so I'm going to write mathematics here, caps lock on, mathematics. And the topic which I have taken, that is addition. तो हम form description में addition लिखेंगे. After this, आपको आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का नेम पहले बच्चा फीड करे, बिकॉज एग्जाम में यही होता है, बच्चा अपना नेम लिखता है एंड देन दे आंसर द क्वेश्चंस. तो आप क्या करेंगे, अनटाइटल्ड क्वेश्चन में यू कैन राइट सिंपली नेम, NAME, and why it is not taking A? Okay, name. Now leave it short answer because here the child is going to write the answer, means he is going to write his name. Okay, and switch on this रिक्वायर्ड ऑप्शन को आप ऑन करो, बिकॉज अगर ऑन नहीं करेंगे तो बच्चा नेम नहीं भी लिखेगा, ही कैन अटेम्प्ट द पेपर, बट वंस इफ ही ऑन इट, इट मेक्स मैंडेटरी फॉर द चाइल्ड टू राइट द नेम. जब तक बच्चा नेम नहीं लिखेगा वो आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकता है. we will what we'll do, we'll just click on this plus option. Now here we are going to write class, क्योंकि हमारे लिए क्लास भी इम्पोर्टेंट है, that which class it is. So option A, you can write 3A. For example, अगर section A है, then in the second one you can write 3B, and so again your required option is off. So make sure you have to on it, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा अपना क्लास और सेक्शन मार्क करे. फाइन. अब चलते हैं दोबारा अपने क्वेश्चन वाले पार्ट पे, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. सो अगेन क्लिक ऑन दिस ऐड बटन. Here you will get this option. Now start typing your questions here. Question number 1. For example, I'm taking 3 plus 6 because I have taken topic addition. Now, if you want the child to answer in one word, so you can give short answer kind of thing. But मैं चाहती हूँ multiple choice देना, so I'm taking multiple choice. Fine. Options. You can give option 6. Add another 7. I'm adding one more option to it. That is 7. One more option to it, 8. And the last one is 0. So I'm giving 4 options. Fine. It's up to you. If you want to give 3 option or 10 options, it's up to you totally. Fine. Okay. So question number 1 is ready. Now if you want to give more questions, you can add as many as you want by clicking on this plus sign. आप इस पर क्लिक करते जाएंगे, आपके पास और क्वेश्चंस के ऑप्शन आते जाएंगे. यू कैन डू इट दैट वे. और अगर आपको पैराग्राफ वाले चाहिए, पैराग्राफ में आंसर चाहिए, यू कैन क्लिक ऑन पैराग्राफ.
If you want multiple choice, click on this. If you want short answer, you can click on this. Now let's see some other tools of Google Forms. Okay, if you'll see this option, टू रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं, ये है आपका ऐड सेक्शन. कभी कभी हम इंग्लिश के जैसे एग्जाम्स लेते हैं तो उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, देन इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर. सो इफ यू वांट टू ऐड सेक्शन हियर आल्सो इन योर गूगल फॉर्म, you can click on this button, and in this option when you'll click, you'll see this. Fine untitled section and description optional. Here again you can add section. अगर आपको comprehension you want to give title to it, just write the title. The third option which I'm going to tell you is about add image. अगर आपको image डालना है and you want some questions based on that particular picture, you can do that too. Fine. वो कैसे करेंगे? आपने plus option किया, add question. Here देन आफ्टर दिस यू गो टू दिस ऐड इमेज. तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे. अगर आपको गूगल से सर्च करके लेना है, यू कैन डू दैट. कैमरा से, बाय यूआरएल, फोटोज, सो यू हैव गॉट मेनी ऑप्शंस, बट आई एम डूइंग ब्राउज हियर. फाइन. ब्राउज करते ही आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शन आएंगे. डॉक्यूमेंट से लेना है, डाउनलोड से लेना है, डेस्कटॉप से लेना है. सो आई हैव सेव माई इमेज ऑन डेस्कटॉप, सो आई एम टेकिंग फ्रॉम हियर. Now can you see the image here? Now this is the image which I have taken. अगर आप ये 3 dots देखेंगे, so click on these 3 dots. It will give you the options कि आपको picture change करनी है या right में रखना है, center में रखना है, left में रखना है. So I want to take the center one. आपकी picture center में हो जाएगी. In this way you can set your picture too. In the same way, if you want video, you can click on the video option. Fine. I'm not taking it right now. अब प्लस में क्लिक करेंगे and here I can write questions based on the picture. For example, how many apples are there in total? Now again I'm making it multiple choice, so I'll give option to the child. 3, 5, 2. Okay, so I have given only 3 options. Now if you want to check overall your paper कि पूरा कैसा बना है, is there any mistake, then you can go on the top. Here you will see an eye picture. Click on this. It's a preview button. तो आपको दिख जाएगा कि आपका टेस्ट बेसिकली कैसे फॉर्म हुआ है. Is there any mistake? You can check. Okay, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, and how it is looking. So it will show you that. Fine. और दूसरा ऑप्शन देखें तो फर्स्ट वाला, इट इज़ कस्टमाइज थीम. अगर आपको अपने पूरे इस फॉर्म को, इस टेक्स्ट को कोई थीम देना है, यू कैन डू दैट. फाइन. थोड़ा कलरफुल हो जाएगा. क्लिक ऑन दिस. इफ यू वांट टू चेंज द साइड, ओके, कलर, सॉरी, ओनली द कलर. जो साइड में ये है पर्पल कलर, इसे चेंज करना है. यू कैन क्लिक ऑन दीज कलर्स एंड यू कैन सी द कलर इज ब्लू नाउ. इन द सेम वे, अगर आप चाहते हैं कि कुछ पिक्चर आए, इमेज आए, सो चूज इमेज एंड इट विल शो यू फ्यू थीम्स. आपको थीम्स दिखा रहा है. फाइन. बर्थडे, वर्क एंड स्कूल. अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पिक्चर है, यू कैन अपलोड और यू कैन लुक फॉर इट. आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं. फाइन. फोटोज में क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी में जो फोटोज है, इट विल शो यू दैट. राइट नाउ आई एम टेकिंग दीज थीम्स विच आर ऑलरेडी देयर. तो वर्क एंड स्कूल में कोई भी एक थीम ले लेते हैं. ओके, लेट्स टेक दिस वन. फाइन. इंसर्ट. सी, बेसिकली आपकी टेस्ट को एक थीम मिल जाती है एंड इट लुक्स कलरफुल. और भी अगर आपको थीम में कोई कलर चेंज करना है, दैट वुड विल लुक गुड विद इट. अगर इसे और ब्राइट बनाना है, कुछ पिंक लेना है, यू कैन डू दैट. ऐड. ओके, so you can change the colors according to your need, according to your theme. And now if here you will see font style.
अगर आपको अपने फॉन्ट का स्टाइल भी बदलना है, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन टोटल, इट इज़ वेरी नॉर्मल बेसिक है. अगर आपको लगता है कर्सिव में देना चाहिए, सो यू कैन मेक इट डेकोरेटिव, वो कर्सिव हो जाएगा. इफ़ यू वांट टू मेक इट playful, you can do that too. Fine. So it gives you option of changing the font style. Background color, अगर आपको बैकग्राउंड में भी कलर चेंज करना है, यू कैन डू दैट, बट आई एम लाइकिंग इट वाइट, सो आई कीप इट वाइट. That's it. That's all about customized theme. Next, if you see anything extra in your form, for example, title है, सब कुछ है, class है, question है, and then this, see you have written question but there is no question as such, ये extra आ गया है कुछ, तो आप इसे delete कर सकते हैं. Select that part and here this is the option of delete it. Again, extra thing is there, select and delete. Fine. ये आपका है delete option. Now this is your setting button. ओके, ये है आपके सेटिंग का ऑप्शन. क्लिक ऑन दिस. जैसे ही आप सेटिंग ऑप्शन में क्लिक करेंगे, आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे: जनरल, प्रेजेंटेशन, क्विजेस. जनरल में हम इसे लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स करेंगे फॉर श्योर. क्यों लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स? क्योंकि अगर एक बच्चा रिस्पॉन्ड दे रहा है तो वो एक बार में, मतलब एक ही रिस्पॉन्स दे, ये नहीं कि आप बार बार वो उस चीज़ का रिस्पॉन्स देगा. फाइन. उसका गलत हो गया, उसको शो दिख रहा है कि उसके मार्क्स कम आए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो दोबारा जाके गूगल फॉर्म ओपन करे एंड दैट चाइल्ड कैन गिव द टेस्ट अगेन. सो क्लिक ऑन दिस ऑप्शन. इससे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो लोग एक से ज़्यादा बार आपका अपना रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे. बट फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गिविंग प्रैक्टिस शीट, अगर आपने प्रैक्टिस शीट दी है तो आप इसे ऑन नहीं भी कर सकते हैं, एंड आप इसे यहाँ पे एडिट आफ्टर सबमिट भी कर सकते हैं कि बच्चे ने सबमिट कर दिया है एंड दैट चाइल्ड कैन सी उसका आंसर गलत है. दे कैन एडिट आफ्टर सबमिशन ऑल्सो बिकॉज इट इज़ अ प्रैक्टिस के लिए यू कैन क्लिक ऑन दीज ऑप्शंस. अदरवाइज इफ़ यू आर गिविंग टेस्ट, देन मेक श्योर ये सारे ऑप्शंस आपके ऑफ हो एंड ये ऑप्शन आपका 1 हो. ओके. नाउ प्रेजेंटेशन वी आर नॉट डूइंग, वी आर डूइंग क्विजेस. तो आप जब आपने क्विज फॉर्म किया है तो आपको ये सारे ऑप्शंस को ऑफ नहीं रखना है, ऑन ही रखना है. मेरे तो पहले से ऑन थे, बट आप अपने विंडो में मेक श्योर करेंगे कि आप मेक दिस इज अ क्विज. ओके, मेक दिस अ क्विज वाला ऑप्शन ऑन रखेंगे. फाइन. वंस यू ऑन इट, नीचे भी चेक करना है कि ये सारे ऑन हों. मिस क्वेश्चन ऑन, करेक्ट आंसर्स ऑन, पॉइंट वैल्यूज ऑन. ये बेसिकली ये है कि जब बच्चा अपना पेपर कर लेगा और जब उसके पास आंसर जाएगा, उसका स्कोर कार्ड जाएगा, सो दैट ही कैन सी कि उसने कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं किया था, उसके कौन से आंसर्स करेक्ट हैं और कितने मार्क्स उसको उस आंसर के लिए मिले हैं. ओके, दिस द चाइल्ड कैन सी. एंड इमीडिएटली आफ्टर रीच सबमिशन, इफ़ यू वांट बच्चे का ग्रेड उसको उसी वक्त मिल जाए, सो यू हैव टू ऑन दिस ऑप्शन. ओके. लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू हम तभी करते हैं व्हेन वी गिव शॉर्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि शॉर्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन में आपको चेक करना पड़ेगा आंसर विच विल टेक टाइम. तो आप इसे इमीडिएटली आफ्टर रीच सबमिशन करते हैं अगर आपका क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है. फाइन. If it is long question kind of thing, आप later after manual review में click कर सकते हैं. But मैंने बनाया है MCQ, so I'm going to click on this option and save. Okay. Now I'm going to tell you the second last step. After this, one more step is there, and then end. Okay. If you will come to this question, for example, this: how many apples are there in total? Okay. अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है आंसर की का. हियर यू हैव टू फीड द आंसर. ओके, आपको आंसर, करेक्ट आंसर फीड करना है. कितने एप्पल्स थे टोटल? करेक्ट आंसर इज 5. सेव. दिस मीन्स अगर बच्चे ने 5 में टिक किया है तो उसका आंसर करेक्ट होगा, एंड अगर उसने 3 या 2 में किया है वो रॉन्ग हो जाएगा. फाइन. एंड नाउ दिस यू कैन सी पॉइंट्स ऑप्शन हियर. आप कितने मार्क्स का देना चाहते हैं इस क्वेश्चन को? इफ़ यू वांट टू गिव इट फॉर 1 मार्क्स यू कैन राइट 1. 2 का देना है 2, 3. अगेन इट्स अप टू यू. एंड
One thing I'll add here, in English, what happens when we give short question answers? तो हम 1 marks का question देते हैं एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में हम क्या करते हैं, अगर फीडबैक में हमने आंसर करेक्ट लिखा है, इफ़ वी राइट फॉर एग्जांपल एनी, इफ़ वी टॉक अबाउट प्रॉपर नाउन, और हम प्रॉपर नाउन में किसी भी स्कूल का नेम लिख रहे हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल और केंद्र विद्यालय, दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो हम अपना डी पी एंड एस विल मेक कैपिटल इन आवर आंसर्स, राइट? बट बच्चे इतने यूज टू नहीं होते हैं फोन्स या लैपटॉप्स, दे मेक इट स्मॉल, और कभी कभी फ़ोन में ऑटोमेटिकली आपका फर्स्ट लेटर स्मॉल हो जाता है, तो इसके लिए यू हैव टू मेंशन इन योर क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा that if the answer will be in small cases, it will be wrong, or something else you can make it short also, that the make sure the first letter should be capital, anything the way you want. Okay. Or the best part is in the settings you can do what you can do, quizzes में जाके you can click on this option later after manual review, आप manually उसको बाद में check कर सकते हैं. Fine. Now the last step, आपका लास्ट स्टेप क्या है? आपका पूरा ओवरऑल टेस्ट इज रेडी नाउ. ओके, आपको अब बच्चों को भेजना है नेक्स्ट डे. सो व्हाट यू कैन डू, सेंड. Here these many options are there. You click on this center part, shorten URL, आप URL को शॉर्ट कर लो, then copy it. ओके, कॉपी करने के बाद आपको एक सेफ रखना है, तो आप अपने जीमेल में खुद को इसे मेल कर लीजिए. इफ़ यू आर टेकिंग क्लास इन जूम, तो रिटर्न टू मीटिंग में जाके आप चैट चैट बॉक्स में इस यूआरएल को पेस्ट करेंगे एंड सेंड कर देंगे, तो ये आपके बच्चों के पास पहुंच जाएगा. दे कैन गिव द एग्जाम एंड यू विल गेट द रिस्पॉन्सेज ऑन द स्पॉट. You can check in this way, you can check that where the bar is going down, कहाँ से आपका ग्राफ किस पोर्शन में नीचे जा रहा है, whether in the passage comprehension में बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं, writing part में नहीं कर रहे हैं, या literature में नहीं कर रहे हैं. So you can see that part where the graph is going down. Okay. And one more thing, if you want to send the same URL through WhatsApp, you can do that. In the end, I want to say that if you feel this video is helpful, then do like and yes, one more thing. आप चाहते हैं कि बच्चा 1 hour में अपना टेस्ट फिनिश करके सबमिट कर दे. So you want to set the time limit. Then please do let me know. And how can you do that? By writing in my comment section.